Warm welcome to everyone on the session of design thinking and how to design software product. So this session is brought to you by HGCCI and the partnership with UBS. I welcome all the people who is on dais. Himanshu Bodawala, President. Ramesh Vakasya, Vice President. He is not present today. Ashish Gujarati, Immediate Vice President, Past President. Bhavesh Taylor, Honorable Secretary. Bhavesh Gadia, Honorable Treasurer. Basir Mysore, Group Chairman, HGCCI. Ganpat Tamilia, Chairman of IT and Communication, HGCCI. Punit Kajera, Co-Chairman, IT and Communication, HGCCI. Also like to Jatin to take a seat on the dais, please. So today's session is all about design. We know, like in Surat, we don't give the preference to design. We are all for software development. We don't give preference or we don't understand the design. So today's session is all about what thinking we need to do in designing, what we can implement in design, how we can make a design as a better, or what thinking we need to implement when we have the design, right? So this is all about design thinking. So to welcome all the people, I would like to Himanshu Bhai for welcome address. Please address all the people. મંચ પર ઉપસ્થિત આજના માહિતીપ્રદ કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા શ્રી જતીનભાઈ લાઠિયા, ગ્રુપ ચેરમેન બશીરભાઈ મંસૂરી, અલ્પેશભાઈ વગાસિયા અને મિત્રો, આજે આપણે અહીં હાઉ ટુ ડુ ડિઝાઇન સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ વિષય સંદર્ભે માહિતી મેળવવા અહીં ભેગા થયા છીએ. મિત્રો, આજનો યુગ એ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો એટલે કે ડિજિટલ યુગ છે. આપણી રોજિંદી દિનચર્યામાં ટેકનોલોજી એ હદે ભળી ગઈ છે કે દરેક કામ માટે નાનું હોય કે મોટું આપણી આંગળીના તેડવે રમતું થઈ ગયું છે. સિમ્પલ એક કેબ બુક કરવાથી માંડીને વિદેશોની ટ્રીપો પણ આપણા નજરની સામે ખૂબ જ સરળતાથી ગોઠવાઈ જાય છે અને તેને આપણે પળવારમાં હાથ વગી કરી લઈએ છીએ. પણ મિત્રો, આપણે ક્યારે વિચાર્યું છે કે આ બધી એપ્સ કે સોફ્ટવેર આપણને શા માટે આટલી પ્રિય થઈ પડે છે? તેના ઘણા બધા કારણોમાંનું એક તેની ડિઝાઇનિંગ. જ્યારે આપણી પાસે કોઈ કાર્ય માટે એકથી વધુ વિકલ્પ હાજર હોય ત્યારે તે વિકલ્પોમાંથી આપણે ધી બેસ્ટને પસંદ કરીએ છીએ. કેમ? કારણ કે તેના બાહ્ય સ્વરૂપ, તેની આંતરિક ગોઠવણ, તેના વિવિધ ફીચર્સ, તેની સેવાઓ અને સૌથી અગત્યનું કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન, ગ્રાહકનો સંતોષ, આ પરિબળો સૌથી વધુ મહત્વ ધરાવે છે. પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનિંગ કરતી વખતે તેની જરૂરિયાત અને તેની વર્કિંગ સ્ટાઇલ કેવી રીતે કામ કરે છે તે સમજવું ઘણું જરૂરી છે. ઉદાહરણ રૂપે, જ્યારે HR સંદર્ભે સોફ્ટવેર બનાવવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે તેમાં કર્મચારીને સંલગ્ન તમામ માહિતી ઉપલબ્ધ હોય તેવી ચોક્કસ અપેક્ષા હોય છે. તે વખતે બનાવનારની કલ્પના કરતા વાપરનારની જરૂરિયાત જો બરાબર સમજાઈ જાય તો તે સોફ્ટવેર કે એપ સાચા અર્થમાં કામ સરળ બનાવી આપે છે. ધ US બ્યુરો ઓફ લેબર સ્ટેટિસ્ટિક દર્શાવે છે કે 2029 સુધીમાં સોફ્ટવેર એન્જિનિયર્સની જરૂરિયાત 22% સુધી વધી જશે. કોવિડના સમયગાળામાં પણ સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ તેમનું કાર્ય ચાલુ રાખી શક્યા હતા. આમ વૈશ્વિક મહામારીમાં પણ આ ક્ષેત્રની માંગ અને કાર્ય બંને ધમધમતા રહ્યા હતા. ટેક વર્લ્ડ ટાઈમ્સના અહેવાલ અનુસાર આવનારા સમયમાં સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ એ કારકિર્દીના વિકલ્પોમાં અગ્રતમ ક્રમે રહેશે. અન્ય એક મેકેન્ઝી ગ્લોબલ હાઇટ્સના મત મુજબ 2025 સુધીમાં તો ડિજિટલ ટેકનોલોજીના 65 મિલિયન નવી રોજગારીની તકો ઊભી કરશે. વર્ષ 2022 પછીના વર્ષમાં ક્રોસ પ્લેટફોર્મ ડેવલપમેન્ટમાં ખાસો વધારો જોવા મળશે. આ વધારો ઇનોવેટિવ ટેકનોલોજીના આભારી હશે. એક સિંગલ કોડ બેઝ દ્વારા આ ક્રોસ પ્લેટફોર્મ અન્ય ક્ષેત્રને પણ મદદરૂપ પૂરવા થશે, જેથી અન્ય ક્ષેત્રોના સમય અને રિસોર્સિસ બંનેની બચત થશે. ગ્લોબલ બિઝનેસ સોફ્ટવેર અને સર્વિસ માર્કેટનો વ્યાપ વર્ષ 2021માં $429.5 બિલિયન હતો, જે વર્ષ 2022માં $476.61 બિલિયન અંદાજવામાં આવી રહ્યો છે.
આ આંકડા જ આ ક્ષેત્રની વ્યાપકતા અને ઉપયોગિતા દર્શાવે છે. તેના પરથી આપણને પણ અંદાજ આવી જાય છે કે વર્તમાન અને ભવિષ્યનો સમય એ સોફ્ટવેર ડેવલપનો છે અને તેની રજેરજની માહિતી આજે આપણા માનવંત વક્તા આપણને આપશે, આપ સૌને આપશે. વધુ એકવાર આપ સૌનો હું આવકાર કરું છું અને વિરમું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Mansubhai. Now we will move forward with the flower presentation and the presenter moment too. I would like Himansubhai to present to Jatin, today's our speaker. Thank you very much. Now we will go ahead and see like what is about the program, right? જે આપણે 1 કલાક માટે ભેગા થયા છે તો 1 કલાકની અંદર શું લર્ન કરશું એના માટે આઈ વુડ લાઈક શ્રી બશીર મંસૂરભાઈ ફોર ગ્રુપ ચેરમેન HGCCI. Please welcome on here to give us the understanding what about the program and what we learn in this session. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. મિત્રો, આજે આપણે જોડાયા છે શેના માટે? કંઈક વિચારવા માટે. તો બધા પોતપોતાના વિચારો તો લાવી જ હશે કે પછી આજે આપણે આઈટી વાળા એટલે ગમે ત્યારે વિચાર લાવી જ દઈએ આપણે તો ઊભા થઈને ઓન ધ સ્પોટ. તો બેઝિકલી આજે જે આપણે મળ્યા છે તે ડિઝાઇન થિંકિંગ પ્રિન્સિપલ્સ માટે વિચારીએ છીએ. વોટ ઇઝ અબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ? આજે શેના માટે મળ્યા છે? તો એ જ વસ્તુ છે ને આપણે SGCCI અને અલ્ટિમેટ બિઝનેસ સિસ્ટમ્સના જોઈન્ટ સેશનથી આજે આપણે ડિઝાઇન થિંકિંગ પ્રિન્સિપલ્સની ઉપર આપણે ચર્ચા કરશું. આપણે વિચારશું કે વોટ એક્ઝેક્ટલી કેન એનીવન જસ્ટ એલેબરેટ કે ભાઈ આજનો જે સબ્જેક્ટ છે તેનું તમે એમ કહો ને કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ બેઝિક પ્રિન્સિપલ એમ કહેવાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ થિંકિંગ, વિચારની તો કોઈ મર્યાદા જ નથી. એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે આજે વોટ્સઅપ જોયું કે ભાઈ કોઈ બી સોશિયલ મીડિયાના જોઈએ તો ભાઈ એક વિચાર આવ્યો અને વિચારથી આજે દુનિયા જોડાઈ ગઈ. તો ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક દેટ કે ખાલી આપણે વિચારને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું અને એને યુટિલાઇઝેશન કેવી રીતે કરવું. તો આજનું જે સેશન છે તે ડિઝાઇન થિંકિંગની ઉપર છે કે ભાઈ એક વિચાર હમણાં હું બોલતો અને મારા મગજમાં કંઈક વિચાર આવી ગયો અને એ વિચાર આવ્યા પછી એને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું અને એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે કોણ કરે? તો આપણા બધા આઈટી ગાઈઝ આર ધ બેસ્ટ પર્સન્સ. તો એના માટે આજે આપણે આપણા જે વેલ નોન સ્પીકર છે જતીનભાઈ, એમની પાસેથી આપણે આ વસ્તુ જાણીશું કે ભાઈ એ વસ્તુ કેવી રીતે થઈ શકશે. આપણે આજે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન કેવી રીતે કરવું, એમાં ચેલેન્જીસ કેવી રીતે આવે. આપણા જે માન્ય સ્પીકર છે હી ઇઝ વન ઓફ ધ પ્રોફેશનલ પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનર, બરાબર, અને વન ઓફ ધ કોર્પોરેટ પ્રોફેશનલ ડિઝાઇનર છે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇનર. એમનું એક્સપિરિયન્સ બી જે છે તે સ્ટાર્ટઅપ્સની અંદર છે. જીઓ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ હિઝ ક્લાયન્ટ એમ કહે તો તમે એમાં વિચારી શકો કે એ માણસે વિચારવાનું ક્યારે શરૂ કર્યું હશે તો આજે આ લેવલ પર આવ્યું. તો આપણે બી આજે આ જ વિચાર આપણી નવી વસ્તુને શું નવું લાવવું અને કેવી રીતે કરવું એના માટે આજે આપણે ભેગા થયા છે. આજની જે ડિઝાઇન થિંકિંગ છે તે આપણે ક્રિએટિવ ચેલેન્જીસ કઈ રીતે લાવી શકીએ, શું નવું ડેવલપ કરી શકીએ એ વિશે આપણે જાણશું. સો મિત્ર, તમને થોડી વારમાં અબાઉટ ધ સેશન છે, અબાઉટ ધ પ્રોગ્રામ છે, અમારા પુનિતભાઈ બી તમને બ્રીફ કરશે પ્રોગ્રામ વિશે. ત્યાં સુધી તમે સાંભળો એના કરતાં વિચારવા માંડજો કે સાહેબને આપણે શું પૂછવાનું છે, બરાબર. અને એ જે સ્ટાર્ટઅપથી નવું લાવશો તો કદાચ એ બી વિચારવા માંડશે કે એમણે હવે શું કરવાનું કે તમને સેટિસ્ફાય કરી શકે. સો આઈટી વાળાનું કામ જ આ છે, બોલવાવાળા બોલ્યા કરશે, તમે વિચાર્યા જ કરજો અને પછી આપણે સાંભળીને એમને જવાબને ક્વેશ્ચન આન્સર કરો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. એના વિશે આપણે સેમિનાર છે. માય ડોટર ઇઝ અ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર. સી ઇઝ ઇન મશીન લર્નિંગ અને AI. સી ઇઝ ઇન કેનેડા. જ્યારે કોવિડ હતો ને ત્યારે આખી દુનિયામાં એક જ બિઝનેસ ચાલતો હતો અને તે આઈટીનો હતો. બાકી ઓલમોસ્ટ બધા બિઝનેસો બંધ થઈ ગયા હતા. અને ડ્યુરિંગ કોવિડના 1.5 વર્ષ દરમિયાન એમની કંપનીએ, એ લોકોની કંપનીએ એક નવી પ્રોડક્ટ ઇન્વેન્ટ કરી અને ઇન્વેન્ટ કરીને લોન્ચ કરી અને ઇટ ઇઝ બૂમિંગ ઇન કેનેડા નાવેડેઝ. એટલે યુ ઓલ ગાઈઝ આર લકી કે આપણી પાસે જતીનભાઈ લાથિયા છે. એમને તાળીઓના ગડગડાથી વધાવી દેવા જોઈએ આપણે. થેન્ક યુ વેરી મચ હિમાંશુભાઈ અને બશીરભાઈ. કોઈ કીધેલું છે કે નોલેજ જોતું હોય, રાઈટ?
તો નોલેજ કયા સોર્સથી આવે છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમે કોઈ રોંગ સોર્સ સિલેક્ટ કરી લીધો તો તમારી પાસે રોંગ ઇન્ફોર્મેશન આવશે, ને કોઈ રાઈટ સોર્સ સિલેક્ટ કરશો તો રાઈટ ઇન્ફોર્મેશન આવશે, રાઈટ. તો એવી જ રીતે આજના જે આપણા ગેસ્ટ છે એ ગેસ્ટનું જે ઇન્ટ્રોડક્શન આપવા માટે આઈ વુડ લાઈક પુનિત ગજેરા, the co-chairman of IT and Communication at GCCI, come up here and please give the introduction about the guest. Thank you Manshubai and Bashirભાઈ for talking on IT because IT વાળા હોય ને IT ની વાત કરે તો બરાબર કહેવાય, પણ બાકીના લોકો પણ IT માટે વાત કરે. સુરતમાં એવું કહેવાય છે ટેક્સટાઇલ ને ડાયમંડ પછી IT will be the next. સો આપણે એના માટે તો ભેગા થયા છીએ ને. આજે ક્લાયન્ટ એટલે હું થોડું ડિઝાઇન થિંકિંગના પ્રોગ્રામ વિશે કહું કે ક્લાયન્ટની ડિમાન્ડ અને જે ડિલિવરેબલ છે એમાં બહુ જ જગ્યા હોય છે અને ક્લાયન્ટને ક્યારેય સેટિસ્ફેક્શન નથી અપાતું બીકોઝ ડિઝાઇન થિંકિંગના પ્રિન્સિપલ પર જ આપણે કામ નથી કરતા અને જે કરી લે છે ને એ લોકોએ સક્સેસ ક્યાંય મેળવી લીધી છે. રિસેન્ટલી તમે જોવો છો કે વોટ્સઅપ પણ સમવાય ડે એવું હતું કે 19 બિલિયનમાં ફેસબુકે લીધું હતું, પણ એને પણ ક્રોસ કરીને હમણાં ફિગમાં જે ડિઝાઇન થિંકિંગ પ્રિન્સિપલ સપોર્ટ કરતું હતું એ ટૂલ જ એના કરતાં પણ વધારે વેલ્યુશન પર લેવાયું છે. સો ડિઝાઇન થિંકિંગ જેમ આઈટી વાળાને ખબર જ છે વધારે સારું છે. અને આજના આપણા સ્પીકર જતીનભાઈ જે 7 વર્ષથી આ ડોમેનમાં કામ કરે છે અને ઘણા એવા સ્ટાર્ટઅપ્સને આઈટી કંપનીઝને એણે સર્વ કર્યું છે કે એનો આખો જે આઈડિયા છે ને એ બધા આઈડિયા બનાવી શકે છે, પણ ડિલિવરેબલ અને ક્લાયન્ટ એક્સેપ્ટન્સ છે ને એનામાં એનો બહુ જ સારો એક્સપિરિયન્સ છે અને એની એક્સપર્ટાઇઝ છે ને વિઝ્યુઅલી બેટર તમારી પ્રોડક્ટને બેટર બનાવવાનું છે. સો વિઝ્યુઅલીની એક્સપર્ટાઇઝ છે. આજે આખા જર્નીમાં આપણે જોશું અને એણે એન્ટાયર લાઈફમાં ઘણી બધી કંપનીઓમાં સ્ટાર્ટઅપથી લઈને એન્ટરપ્રાઇઝ સુધીના ક્લાયન્ટોને સર્વ કર્યું છે કે હાઉ દે આર થિંકિંગ. એ લોકો થિંકિંગ કેવું કરે છે, એ લોકો ભલે એના માટે 2 થી 3 મહિના ખાલી શું બનાવવું જોઈએ ને કેવી ડિઝાઇન હોય એના પર રિસર્ચ કરે છે. સો એ જ એક્સપર્ટાઇઝ છે જતીનભાઈની. અને બાકી તો હું બોલી નહીં કહી શકું, પણ યસ જતીનભાઈનો સેશન જ કહી દેશે કે હાઉ ઇઝ એક્સપિરિયન્સ ટુડે અને એના શું ઓપનિંગ મળે છે. સો યસ થેન્ક યુ ફોર યુ કમિંગ. અને યસ હું અલ્પેશભાઈને કહું છું કે આગળનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરો અને બસ સાંભળીએ જતીનભાઈને અને ડિઝાઇન પ્રિન્સિપલ્સને એડપ્ટ કરીએ. ધેટ ઇઝ ઓલ. થેન્ક યુ. All office barrier, can you please take a seat on first row? Yeah. Thank you very much. Now, yeah, we hand over to person who is run today's show, Jatin Lathia. I would like everyone to have a clap for him because I know him personally from last 7 years, and he's a very good person in person also, and he's a great in design. I till I know in product designing. So yeah, I hope everyone learned something new because we are going to invest about 2 hours here. So keep your note and pen ready to take in notes because I know this session is going to be very wonderful for everyone. Thank you very much. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વેરી ગુડ ઇવનિંગ. તમારામાં આજ ફ્રાઈડે છે અને થોડો ટાઈમ કાઢીને અહીંયા આવવા માટે થેન્ક યુ ફોર દેટ. એન્ડ થેન્ક યુ ફોર ધ SCGGI કે જેને ઇન્વાઇટ કર્યા મને ટુ સ્પીક રિગાર્ડિંગ ધ ડિઝાઇન થિંકિંગ. એકચ્યુઅલી ઇટ્સ અ વેરી ગુડ ફિલિંગ કે ડિઝાઇન છે વિશે થોડીક વાત અહીંયા થઈ રહી છે. Because we have culture that mostly we are talking about the sales and marketing broadly when we design a product, but design is a very broadly topic. Design thinking is a very broadly topic. જે ધીમે ધીમે અહીંયા નથી પણ જ્યારે આપણે બહારની પ્રોડક્ટ બનાવીએ છીએ જ્યારે આઈ ફીલ કે મેં જે એક્સપિરિયન્સ કર્યો છે દેટ્સ ઓનલી આઈ એમ શેરિંગ રાઇટ નાઉ. એકચ્યુઅલી આઈ એમ નોટ અ એક્સપર્ટ, આઈ એમ જસ્ટ શેરિંગ માય આઈડિયાઝ એન્ડ વોટ આઈ લર્ન. ઓકે, એક્સપર્ટ થવામાં હજી મારો બહુ ટાઈમ લાગશે. એટલે ડોન્ટ ટેક ઇટ વેરી કે હું બહુ મોટું કહીશ, ટેક ઇટ સિરિયસલી નહીં લેતા. સો લેટ મી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગીવ માય ઇન્ટ્રોડક્શન લિટલ બીટ. જો કે ઇન્ટ્રોડક્શન આપી જ દીધું છે. હિન્દી ગુજરાતી ચાલશે ને? હિન્દી ઓકે, હિન્દી. ઓકે, સો લેટ મી मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ फर्स्ट. आई एम अ UX designer. Before that, I also run my company where we going to develop a mobile app websites. Okay, so मैंने 3 साल तक IT companies भी चलाई हैं. Then I switched my career with the UI UX and product design because design में मुझे बहुत सारा interest लगने लगा था. Okay, so I left the company and just going to with the design. Then I also work with the various companies from startup to enterprise, such like Atomic, who is the people behind WordPress, WooCommerce, Tumblr. Atomic is a parent company. Then I work with the Convert. Convert is a top 10 A/B testing platform. So उसकी डिजाइन टीम के साथ भी मैंने काम किया है. Teachmeet is the fastest growing edtech company, education tech company, जो बेंगलोर में बहुत बड़ा स्टार्टअप है.
So I also work with the tech company. I was part of that team. Uska. So let's begin with the design thinking. First of all, हम start करते हैं how to design a product, but not how, but why design thinking? Why? हमें start करना चाहिए why से. Design thinking क्यों चाहिए हमें? Okay? ये broadly process है जो हम product बनाने के लिए यूज कर रहे हैं. डिजाइन थिंकिंग के दो मेन पॉइंट है. एवरीवन नोज देयर आर 5 पॉइंट्स एंड ये लोग है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 5 पॉइंट्स. उसके बारे में बात करेंगे. द मेन पार्ट इज इनोवेशन, जो डिजाइन थिंकिंग के साथ हमें लाना है. तो जैसे पुनीत ने एग्जांपल दिया इज फिग्मा. फिग्मा जो अभी है वो एडोबे ने एक्वायर कर लिया, बट एडोबे उससे बड़ा था, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन जो फिग्मा ने दिया. व्हाई? बिकॉज फिग्मा ने यूजर का एक्सपीरियंस पर फोकस किया, नहीं के बिजनेस पर. बराबर. जो प्रोडक्ट्स पहले भी थे डिजाइन प्रोडक्ट, स्केच था एप्पल का, वो अपना स्केच था. उसके बाद फोटोशॉप भी था, XD भी था, देन इनविजन भी था, लॉट्स ऑफ द डिजाइन टूल इन द मार्केट. फिर भी फिग्मा आज आगे चला गया. व्हाई? बिकॉज दे फोकस ऑन द एक्सपीरियंस, नॉट अ बिजनेस. तो जब आप एक्सपीरियंस के फोकस करोगे, यूजर एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, तो आप अपने आप ही आगे बढ़ जाओगे. अगर यूजर आपका टूल, प्रोडक्ट जो भी हो, सर्विसेज, उसको एक्वायर करेगा, वो सेटिस्फेक्शन होगा, तभी आपकी प्रोडक्ट सक्सेस होगी. बाकी कितना भी मार्केटिंग में लगा लो, कितना भी प्रोडक्ट बनाने में लगा लो, यूजर सेटिस्फाई नहीं होगा, तब कुछ नहीं होगा. ओके. सो मेन डिजाइन थिंक का मेन यही है कि इनोवेशन एंड यूजर एक्सपीरियंस. नाउ आप पीछे 3-4 साल से देख लो, लोग यूजर एक्सपीरियंस पर मोर फोकस कर रहे हैं. ओके. सो दैट्स द डिजाइन थिंकिंग. लेट्स स्टार्ट विद दैट. उसके so what is design thinking? Design thinking is an iterative process in which you seek to understand your user, redefine problem and creative solutions, innovative solutions. मतलब मेन चीज है कि आप यूजर को समझो, उसका प्रॉब्लम समझो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन लाओ. कि नहीं कि डायरेक्ट मेरे पास ये सॉल्यूशन है तो उसका एक प्रोडक्ट बना दूं, तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो जाएगा, वो हाइपोथेसिस हम बना लेंगे. ऐसा नहीं है. पहले यूजर को समझना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम क्या है उसको समझना पड़ेगा, देन यू आर प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन. ओके. डिजाइन थिंकिंग ये प्रोसेस सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है. इट्स नॉट लाइक द IT कंपनीज इसको एक्वायर कर देते हैं, कोई प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको एक्वायर कर देते हैं. इट्स अ ब्रॉडली डिफाइंड टर्म्स को जो सभी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक अ फिजिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक स्मार्टफोन, मोबाइल फोन्स and laptops or any physical product when you are building that product. और SaaS product, software product, उसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन सर्विस प्रोवाइडर्स, आप कहीं भी सर्विस प्रोवाइडर IT में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दूसरी सारी भी प्रोवाइड करते हैं, देन वी कैन अप्लाई दैट इन दैट एरिया एज वेल. कम्युनिटी ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स लाइक वेलनेस एंड बैंकिंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट. अगर आपको खुद को भी इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको कुछ हैबिट है या कुछ प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो गो टू द डिजाइन थिंकिंग. उसके स्टेप्स देर आर 5 टोटल डिजाइन थिंकिंग फेजेस है. इट्स अ नॉन लीनियर. ऐसा मत समझो कि एक 1 by 1 स्टेप्स है, बराबर. कि एक एम्पैथीज कंप्लीट होने के बाद डिफाइन है. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ नॉन लीनियर प्रोसेस, नॉट वीकेंड प्रोसेस बट फेजेस. सो दीज आर द 5 phases of the design thinking. Is the empathies, define, ideate, prototype and test. Empathies means you understanding the users. First of all आप यूजर को समझो, and then define, figure out the problem. यूजर को फेस क्या प्रॉब्लम क्या फेस हो रही है उसको आपको डिटेल में समझना है. देन आइडिएट, जो प्रॉब्लम है उसका मल्टीपल आइडियाज जनरेट करो. जनरेटिंग योर आइडियाज लिस्ट बनाओ, उसको आप लिस्ट बनाओ और जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है वो उसको आगे बढ़ाओ लेके. देन प्रोटोटाइप, जो भी आइडिया है वो आप डिजाइन प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो भी हो उसमें आप प्रोटोटाइप बनाओ, टेस्ट एंड देन टेस्ट करो. ओके. सो लेट्स गो डीप इनटू द वन ऑफ दिस 5 फेज है, उसमें हम डीप में जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर्स.
हमने बहुत बड़ा यूजर्स वर्ड समझ के थक गए कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, बराबर। यूजर्स कौन है, सभी लोग कह रहे हैं भाई यूजर्स को चाहिए वो, तो मैं यूजर्स हूँ, आप यूजर्स है, सब कुछ यूजर्स है, सब लोग यूजर्स हैं। बट मेरी प्रोडक्ट है तो उसका यूजर कौन है वो तो हमने सोचा ही नहीं। सो देर आर ए यूज केस ऑफ द यूजर्स। एक प्रोडक्ट एक यूजर के लिए परफेक्ट सूटेबल है तो इसका मतलब नहीं है कि ये सब लोगों के फिट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोडक्ट जो भी बना रहे हो उसका आपके यूजर्स सोचना पड़ेगा कि मेरी प्रोडक्ट कौन यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बिल्डिंग द स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर स्कूल रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपके यूजर्स कौन हुए, लाइक पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स, वो आपके यूजर्स है। तो वो प्रोडक्ट आप बाहर नहीं बेचोगे दूसरे लोगों के साथ, बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उससे पहले आपको यूजर को समझना होगा कि किसके लिए बना रहा हूँ मैं, और उससे इम्पोर्टेंट कि उसको चाहिए कि नहीं। प्रोडक्ट ऐसी चीज है, आपको सपोज की सर्विस बना रहे हो और ऐसा लग रहा है कि चलो भाई सर्विस ने तो बहुत काम कर लिया है, अब कुछ नया डिपार्टमेंट स्टार्ट कर दे, कुछ प्रोडक्ट बना ले और स्टार्टिंग कर दे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ऐसे नहीं होता। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको यूजर्स चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि उसको जरूरत है कि नहीं। उसके बाद हम सोचना वहां से स्टार्ट करेंगे कि प्रोडक्ट बनानी है कि नहीं, कि रिवर्स हो भाई आज प्रोडक्ट बनानी है तो चलो गूगल में हम सर्च करते हैं व्हाट आर द बेस्ट आइडियाज टू डिजाइन अ प्रोडक्ट, उसमें से कोई उठा के हम बना देते हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूजर्स चाहिए एंड देन एम्पैथीज क्या, कि उसको हमें डीपली समझना है, कि उसकी भावना को समझना है कि यूजर्स को चाहिए वो हम दे पा रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल उबर ईट्स एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो उबर ईट्स होता है कि उबर ईट्स टीम बिलीव्स दैट एम्पैथी फॉर यूजर्स इज अ की टू डिजाइनिंग सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। फॉर जो लोग नहीं जानते, उबर ईट्स फूड डिलीवरी ऐप। तो वो क्या करते हैं, वो उबर ईट्स अपनी डिजाइन टीम को मार्केट में भेजती है, उसका एक प्रोग्राम है। तो उबर ईट्स बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े अलग अलग सिटीज में काम कर रही है। तो अपनी डिजाइन टीम को वो रेस्टोरेंट में भेजते हैं, एक्सप्लोर देयर कल्चर, सब बर्लिन में, टोक्यो में, अलग अलग जगह पे। तो कंपनी डिजाइन टीम को बोलती है कि यू एक्सप्लोर देयर कल्चर, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, डिलीवरी सिस्टम क्या है, उसका रेस्टोरेंट सिस्टम क्या है वो समझो, फूड का कल्चर भी समझो। यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव बिकॉज हम फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड है। ओके, तो दीज आर द डिजाइनर्स जो टोक्यो में है और फूड एंजॉय कर रहे हैं एंड दे आर एक्सप्लोरिंग देयर यूजर्स। वहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाएंगे, जो शेफ है उसको पूछेगा, रेस्टोरेंट ओनर को भी पूछेगा आपका एक्सपीरियंस किस तरह का है ऐप में। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड कि आप जस्ट ऑफिस में वर्क मत करो, एक्चुअल फील्ड पे जाओ और वहां पे क्या रियल सिनारियो है वो देखो। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द बेस्ट फॉर एम्पैथी, कि यूजर को समझने के लिए क्या करते हैं लोग। एयरबीएनबी सभी लोगों को पता है अभी, फॉर नो उस लोगों को जो नहीं पता है, एयरबीएनबी प्रॉपर्टी लिस्ट दिखा रहा है कि आपको कहीं वेकेशन पे जाना है तो यू कैन जस्ट लिस्ट द स्टे एंड बुक दैट स्टे। तो एयरबीएनबी अभी तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन उसने फेलर अभी फेस किया हुआ है। तो उस टाइम एयरबीएनबी वाज जस्ट मेकिंग $200 पर वीक, ओनली $200 पर वीक वो कमा रहे थे। उसका सब कुछ परफेक्ट था, एक बहुत बड़ी टीम थी, बहुत बड़ा फंडिंग था, उसका ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर कंप्लीट था, वर्किंग प्रोडक्ट भी था कि लिस्टिंग भी थे, लोग यूज भी कर रहे थे, बट अब बुकिंग्स नहीं आ रहे थे। वाई दे आर नॉट जनरेटिंग बुकिंग्स, लोग बुक नहीं कर रहे थे, ओनली जस्ट सर्च कर रहे वहां से निकल जा रहे थे। सो व्हाट्स द पॉइंट। तो अब पूरी टीम लग गई कि कोड में कोई कमी नहीं है, बुकिंग नहीं हो रहा, टेस्टिंग की सब कुछ किया, प्रोसेस तो सब कुछ ठीक है, बट वाई वी आर नॉट गेटिंग द बुकिंग्स। देन
सडनली कंपनी के सीईओ थे जो उस टाइम पे बैठे थे, लिस्टिंग देख रहे थे। देन देन जस्ट रियलाइज ये फोटो में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। आई एम नॉट, मुझे फोटोज पसंद नहीं है, वाई आई एम गोइंग टू स्टे इन दिस लिस्टिंग, जो मुझे पसंद ही नहीं तो वाई मैं इसको बुकिंग करूँ। देन एक अलग ही एक्सपीरियंस मेरा, ऑफिस छोड़ दिया, दे गो टू न्यूयॉर्क। उसमें जितने भी लिस्टिंग थे वहाँ पे वो पर्सनली वहाँ पे गए, दे रेंट अप कैमरा, एक कैमरा लिया और वो जहाँ भी स्टे कर रहे थे उसका फोटो लिया और उस फोटो को अच्छे से रिप्रेजेंट किया वेबसाइट पे। नाउ देयर इज ओनली चेंज कि फोटोज उसने चेंज किए, तो इम्पैक्ट क्या हुआ कि एक वीक में एयरबीएन का रेवेन्यू डबल हो गया। दिस इज स्मॉल चेंज। उसने सिर्फ एक फोटोज चेंज किए, बैड लुकिंग से अच्छे फोटोज जाके, बिकॉज उसने खुद एक्सपीरियंस किया कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो एज अ कस्टमर मुझे क्या चाहिए वो मुझे दिखना चाहिए वेबसाइट पे, बराबर। तो दे एक्सपीरियंस उसने बहुत सारा एक्सप्लोर किया। एज अ सीईओ खुद गए थे, ऐसा नहीं कि जो एम्प्लॉय को भेजा वहां पे गए भाई देखो तो ये क्या है। सो द मीनिंग इज कि आपको यूजर की तरह पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप खुद यूजर बनो, कि नहीं कि सीईओ बनो, टेक गाय बनो कि मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। यूजर को समझो, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। एम्पैथीज, ये एम्पैथीज का बहुत बड़ा एग्जांपल कि यूजर को समझो। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द एयरबीएनबी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है, आपको यूजर को समझ लिया, नाउ यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम क्या है। तो अब प्रॉब्लम को अंदर से समझो, उसका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करो कि ये प्रॉब्लम है तो उसको डिटेल में मैं कैसे सॉल्व करूंगा। डोंट थिंक लाइक अ प्रॉब्लम कि मेरे कंपनी का रेवेन्यू और लाइक अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि डोंट थिंक लाइक कंपनीज पर्सपेक्टिव कि कंपनी नीड टू इंक्रीज कन्वर्जेशन एंड लाइफ टाइम वैल्यू, कि मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए कैसे भी हो, मेरा रेवेन्यू बढ़ना चाहिए कंपनी में, जैसे भी करो, सेल्स बढ़ाओ, मार्केटिंग करो, एडसेंस पे ज्यादा करो स्पेंड। इट्स नॉट लाइक द कंपनी का पर्सपेक्टिव नहीं सोचना, यू नीड टू थिंक अबाउट कस्टमर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर नीड देयर गुड डिलीवरी क्विकली। फॉर एग्जाम्पल ये डिलीवरी रिलेटेड इश्यूज है, तो उस रिलेटेड आप क्या सोचना है कि डिलीवरी फास्ट मिलनी चाहिए। सो हियर यू आर थिंकिंग अबाउट अ यूजर्स, नॉट अ कंपनी पर्सपेक्टिव। ओके, सो देयर इज द सेकंड स्टेप, द डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, उसका आप डिटेल में समझो, डिफाइन करो। देन वी गॉट अ प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम मिल गया है, नाउ यू हैव टू जनरेट द आइडियाज। आपका फोकस पॉइंट मिल गया कि मुझे इस प्रॉब्लम पे फोकस करना है, अब सॉल्व करना है। ओके, सो व्हाट द नेक्स्ट स्टेप कि अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आइडिया जनरेट करें। आइडिया ओवरनाइट जनरेट नहीं होता, इसके लिए आपको पूरी टीम को साथ लेकर चलना पड़ेगा। सो यू नीड टू बी, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी मेंबर्स हो उसको आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दो, भाई ये प्रॉब्लम है, हमें इसके बारे में सॉल्यूशन सर्च करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट इट। ऐसे कि नहीं कि भाई टॉप जो लीडर्स होते हैं वो एक टेबल पे बैठ गए, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ईच एंड एवरी पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंट्रीब्यूट। अगर ऐसा जरूरी है तो उसको टेबल पे बिठाई के बात करो, जस्ट सर्कुलेट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, यूजर्स फेस कर रहे हैं, इसके लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए। इफ यू हैव एनी आइडिया जस्ट शेयर विथ अस। Okay, so try to gather as many ideas and solutions you can and think a wide variety of possible solutions and evaluate each one. आपके पास solutions का लिस्ट आ गया, उसके बाद उसको इवेल्युएट करो और जितने बेस्ट सॉल्यूशंस है उसको आप टॉप में रखो। एक एग्जांपल है कि बहुत टाइम पहले ये ट्रक कहीं पुल पे नीचे फंस गया था। सो ड्राइवर आगे भी नहीं ले जा सकता लेकिन पास पीछे भी नहीं ले जा सकता। सो दे स्टक, ये इश्यू बन गया, बहुत सारी ट्रैफिक हो गई यहाँ पे। सो सिटी के जो भी इंजीनियर्स होते हैं और बड़े बड़े लोग होते हैं, दे जस्ट केम हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर इसको क्या किया जाए,
अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से लोग उसका दिमाग लगा रहे थे। जो इंजीनियर होगा वो ये कहा कि टायर को ही निकाल दे, कोई सिविल इंजीनियर का पूल को ही उड़ा दे। अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से लोग सॉल्यूशन दे रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन निकला नहीं बहुत टाइम से। देन अ किड केम टू द रोड, उसने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेट मी सी। तो एक बच्चे ने सिर्फ देखा और जस्ट छोटा सा वर्ड बोला, इसकी हवा क्यों नहीं निकाल देते? अरे फंस गया था, ट्राई करो ना, हवा निकाल देते हैं। सभी ने सोचा अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, छोटा सा सॉल्यूशन, लेकिन ट्राई तो किया ही नहीं। सो इसकी हवा निकाल दी, एंड इट वर्क्स। छोटा सा सॉल्यूशन था, लेकिन हमारा ब्रेन क्या करता है कि हमारी पोजीशन जो है उसके हिसाब से हम बड़ा सोचते हैं कभी कभार। सो हियर डोंट ओवर थिंक, कि मैंने भी फेस किया है ओवर थिंकिंग, मैंने भी फेस किया है कि बहुत बार प्रोडक्ट बना रहे थे, नई फीचर्स ऐड हो रही है, लेकिन हम एक वीक पूरा स्पेंड करें लेकिन उसमें कुछ निकल नहीं रहा। देन सडनली कहीं से एक छोटा सा आइडिया निकल के आता है। सो हियर डोंट ओवर थिंक, बहुत ज्यादा मत सोचो, कभी कभार छोटा सा आइडिया भी काम हो जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी है वर्स्ट थिंकिंग आइडियाज, कि पहले आप जितने भी वर्स्ट आइडिया है उसको आप लिस्ट करो। उसमें क्या होगा, जितने भी खराब आइडियाज होंगे ना वो आप एक बार देखोगे, उसमें से ये अच्छा आइडिया निकल जाएगा। तो टॉप डाउन से नहीं, बॉटम से जाकर करो, खराब में खराब सॉल्यूशन इसका क्या है वो हम सोचते हैं। देन वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम देम। सो आइडिया स्टेज में ये है कि पूरी टीम के साथ काम करो, ईच एंड एवरी पर्सन करो। यहाँ पे इंजीनियर थे लेकिन वो बच्चा काम आया। सो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई आप कंपनी का एम्प्लॉय, छोटा सा भी एम्प्लॉय भी आपके काम आ जाएगा कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। सो सर्कुलेट द प्रॉब्लम इन कंपनी एंड इन्वॉल्व ईच एंड एवरी पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद आ गया प्रोटोटाइप। आपको एम्फैथिज में यूजर समझ में आ गया, उसका प्रॉब्लम है वो समझ में आ गया, आपके पास सॉल्यूशंस का लिस्ट है। देन एग्जीक्यूट इट, उसको आप किसी भी डिजाइन सॉफ्टवेयर का स्टार्ट करो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बट यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रायोरिटीज आपको देनी पड़ेगी। आपके पास बहुत सारी फीचर्स है, बट विच इज द बेस्ट फीचर्स जो हम यूजर्स को देना चाहते हैं, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं इसका मीनिंग नहीं कि सबको दे दो एक साथ। स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, कि इम्पोर्टेंट चीज है वही पहले दो, उसके बाद आप धीमे धीमे ऐड करते जाओ। ओके, सो क्रिएट अ नंबर ऑफ स्केल डाउन वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, जितना भी वर्जन बने उतना बना लो। देन फोकस ऑन स्पेसिफिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट विच ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आइडिया जो भी हमने एम्फसाइज, डिफाइन और आइडिया फेज में हमने डिफाइन किया था। देन स्लोली एड ग्रेटर डिटेल एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि जो मैंने बोला वही कि सभी को सभी फीचर्स एक साथ नहीं देनी है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसको ही पहले दो। नाउ वी आर, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, प्रोटोटाइप आ गया। देन वी आर गोइंग टू टेस्ट इन द लाइव मार्केट। अभी तो हमारी टीम ने ये सब कुछ बनाया है, यूज किया है सब। नाउ तो टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो टेस्ट की भी बहुत सारी मेथड है, ए बी टेस्टिंग और वट एवर। यहाँ पे हम टेक्निकल नहीं जा रहे, ओनली प्रैक्टिकल जा रहे कि टेस्ट करो। जैसा मैंने कहा कि डिजाइन थिंकिंग ओनली नॉट फॉर सॉफ्टवेयर, इट्स वाइडली यूज, कहाँ पे भी यूज सकता है। इट्स बेस्ड ऑन यूज केस, आपको कैसे टेस्ट करना है। इफ इज अ फिजिकल प्रोडक्ट तो आपको रियल मार्केट में उसका टेस्ट सैंपल देना पड़ेगा। इफ इज अ सर्विस, देन किसी जो आप सर्विस बेच रहे हो उसको आप पहले एक्सपीरियंस करने दो, उसका रिव्यू लो। सेम फॉर द सास प्रोडक्ट, बराबर। तो टेस्ट करो, टेस्ट द प्रोडक्ट, एंड ये लास्ट स्टेप है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इसी टेस्ट फील्ड में आता है, फेज में आता है कि टेस्टिंग। सो नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड इटरेटिंग। सो जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका मतलब नहीं आप प्रोडक्ट बना लिया, टेस्ट कर लिया, वो चलेगा तो मार्केट में फैला दो। देन व्हाट, अब क्या हुआ, लोग यूज भी करने लगे, उसके बाद क्या, आपको इनोवेशन लाना पड़ेगा। कि आप अगर इनोवेशन नहीं लाए
तो आप वहाँ पे स्टॉप हो जाओगे. सो यू नीड टू कंटिन्यूसली इटरेट द प्रोडक्ट, उसमें चेंजेस लाइए और चेंजेस ला के उसके मार्केट में जाइए, उसका डेटा एनालाइज करिए एंड देन इवैल्यूएट समथिंग. उसमें कुछ नया होगा, नई फीचर्स मिलेंगे आपको, देन इन सेकंड वर्जन एड दैट फीचर. सो कीप ट्राइंग, नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग एंड इटरेटिंग. देन गोइंग बैकवर्ड रियली मीन यू आर गोइंग फॉरवर्ड. यहाँ पे क्या होता है कि कई बार हमारी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, लेकिन कई बार फेल भी हो जाती है कि भाई इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, हमारी प्रोडक्ट में सब कुछ है लेकिन यूज नहीं कर रहे लोग. देन यू टू बैक फॉरवर्ड, आपको पीछे जाना पड़ेगा. कहीं पे तो गलती तो होगी, अभी यूजर्स फुल नहीं है, करंट टाइम में यूजर फुल नहीं है. लोग सोच रहे हैं कि यूजर्स को जो भी ले लेगा, नहीं, यूजर स्मार्ट है आजकल का. आप अगर सोचो तो एक छोटा सा बच्चा भी यूट्यूब कैसे ऑपरेट करना चाहता है उसको पता है. सो आज का यूजर स्मार्ट है, तो उस स्मार्ट लोगों को के साथ आपको डील करनी है अभी. डोंट थिंक दे फुल. इफ दे यू थिंक देयर यूजर्स आर फुल, देन यू आर ऑल्सो फुल. बराबर. सो आपको पीछे जाना पड़ेगा. गो द बैक और प्रोसेस को रिडिफाइन करो. प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम होगा, आप गलत प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, यूजर्स को वो चाहिए ही नहीं, तो प्रॉब्लम को चेंज करो, अगर उसको समझो. सो यहाँ पे आपको पीछे झुकना पड़ेगा, थोड़ा बैकवर्ड जाना पड़ेगा, फिर से प्रोसेस डिफाइन करनी पड़ेगी. सो टेस्ट इज अ फास्ट प्रोसेस. उसको जितनी बने उतनी फास्ट बनाओ. कि अगर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट रनिंग हो रही है तो उसके पीछे कुछ दूसरी उसकी फीचर्स आप बैक एंड में काम चालू ही रखो. इसका मतलब नहीं कि वो आगे जाएगी, टेस्ट करेंगे, सक्सेसफुल होगी तो उसके बारे में सोचेंगे. नो, बैक एंड में टीम आपकी इनोवेटिव और इटरेशन में लगनी ही चाहिए. ओके. सो ये कोई बात नहीं, प्रोडक्ट फेल होती है, देन जस्ट गो बैक एंड इटरेट करो. यहाँ पे आपको झुकना पड़ेगा. डोंट बी पुष्पा हियर कि नहीं मैं झुकेगा नहीं, मेरी प्रोडक्ट सही है लेकिन यूजर में ही प्रॉब्लम, उसको समझ नहीं आता. डोंट बी फुल. उसको समझ में आता नहीं कि यहाँ पे हम पुष्पा नहीं बनेंगे, यहाँ पे सोचेंगे, पीछे जाएंगे और कस्टमर्स के साथ में झुकेंगे, नहीं मेरा ही प्रॉब्लम था कि आपको समझ में नहीं आया. देन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर टेस्ट रिफाइंड इज यूबर ईट्स. वो जैसा मैंने पहले किया, डिजाइनर खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सो हियर ये जो 3 लोग हैं वो यूबर ईट्स के डिजाइनर्स हैं. वो अपना खुद का प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पे दे टेक द ऑर्डर्स फ्रॉम द रेस्टोरेंट और कस्टमर को पहुंचाने की ट्राई कर रहे हैं. सो दे आर एक्सपीरियंसिंग देयर ओन प्रोडक्ट. तो पहले हमें तो टेस्ट करने में तो दूसरे लोग तो करते हैं लेकिन हमें कुछ इंसाइट मिलेगा. सो हियर दे आर एक्सप्लोरिंग द प्रोडक्ट और मे बी यहाँ से उसको टेस्टिंग में कुछ आइडियाज मिल जाए, बग मिल जाए. सो यहाँ पे यूबर ईट्स ने एक प्रॉब्लम ढूंढा. डिलीवरी जब बॉय जाता है, एक सिटी था, आई डिडंट रिमेम्बर द नेम, बट वहां पे उसको डिलीवरी करने में ऑन टाइम नहीं पहुंच रहा था. वाई? बिकॉज सर्टेन एरियाज थे वहां पे ट्रैफिक बहुत होता था. सेकंड की पार्किंग का इशू भी था. सो दे फेस, जब उसने डिजाइनर्स ने जब एग्जैक्ट लोकेशन पर जाके टेस्ट किया, दे फील द प्रॉब्लम कि यहाँ पे इशू है. जब टेस्टिंग किया तब सो दे सॉल्व द इशू. उसने अच्छा सा मैप में एक फीचर्स डाल दिया कि ड्राइवर को स्मूथ रोड्स डायरेक्ट करेगा मैप में, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा वो निकल जाएगा, स्मूथ रोड वो मैप में दिखाएगा. सो दैट टेस्ट अपने आप से टेस्ट करो कि नहीं, कि उसको जस्ट पूछो कि आपको फेस प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं. वो तो एक पार्ट है ही. अगर आप डिलीवरी बॉय के साथ भी वो इंटरेक्ट करेंगे कि उसको प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन आपको खुद फेस करना पड़ेगा वो प्रॉब्लम. सो दे रिजॉल्व इट. उसने बहुत अच्छा काम किया इसमें एंड नाउ प्रोडक्ट इज यूज्ड वाइडली. अनदर एग्जांपल टेस्टिंग का है, रीइटरेशन का है, इज Airbnb. So it's a simple change from start to heart icon. Actually ये bookmark का icon है. So you can bookmark the property
आप प्रॉपर्टी लिस्ट में जाते हो, अगर आप फ्यूचर में बुक मार्क करने जाते हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन स्टार बटन. सो बुक मार्क के लिए स्टार बटन दिया था पहले, बट नाउ दे जस्ट स्विच फ्रॉम द हार्ट. द हार्ट क्या यूजर को टच कर गया. देन द रिजल्ट इज ओनली इंक्रीज द एंगेजमेंट बाय ओवर 30%. एक छोटा सा आइकॉन उसका एंगेजमेंट बढ़ा दिया 30%. ये स्मॉल चेंज है लेकिन बिग इफेक्ट है. सो व्हाट द पॉइंट हियर कि इटरेट. प्रोडक्ट को ऐसे ही मत छोड़ो, उसको इटरेट करो, छोटी छोटी डिटेल पे काम करो. दिस अ पेज, ये एक वन ऑफ माय प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम कर रहा था. वी इटरेट दिस पेज 18th टाइम. ये 18वां वर्जन है जो हमने डिजाइन किया है और आगे भी डिजाइन किया है. तो क्या निकला, ये छोटा सा पेज है, इसमें 18 टाइम हम क्या चेंज करेंगे. सो वी चेंज द कॉपी, वी चेंज द लेट्स से हार्ट आइकॉन यहाँ पे भी दिया है. वी एडेड सम मोर डिटेल्स, एक्सट्रैक्ट डिटेल्स, कहीं पूरा डिजाइन भी चेंज किया कभी. सो ये जो साइन अप का जो फॉर्म है उसको एक बार स्टिके में भी दिया था. सो ये छोटे छोटे पॉइंट है वो हमने इटरेट किए. उसको उसके बाद हमने डिप्लॉय किया. देन वी चेक द डेटा, उसका केपीआई क्या है. केपीआई देखने के बाद पता चलता है कि ये छोटा सा बटन भी कैसे हमें रिजल्ट दे रहा है कि नहीं. सो वी इटरेट 18 टाइम और आगे भी इटरेट होता ही जाएगा. एट सर्टेन टाइम आएगा जब हम सेटिस्फाइड हो गए, नहीं अब ये इतने लिमिट आ गई हमारी, ये साइन अप और जो भी हमारा केपीआई था वो जो हम लाना चाह रहे थे वो मिल गया, देन वी स्टॉप. अगर वो सर्टेन लेवल तक नहीं आया देन वी स्टॉप द, ये पेज ही गलत है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा एंड देन रीडिफाइन कि ये लोगों को नहीं चाहिए, कूपन्स चाहिए ही नहीं, कि या फिर इस फॉर्मेट पे नहीं चाहिए, कुछ दूसरा वे ढूंढना पड़ेगा. ओके. सो हमने भी हमारे प्रोजेक्ट्स में, इट इज वन एग्जाम्पल ओनली, बाकी सभी टीम जो मैंने काम किया है वो इटरेशन पे बहुत फोकस करती है. चेंज लाओ, टेस्ट करो, उसका डेटा देखो एंड देन रिजल्ट आने के बाद फिर से उस पर काम चालू करते हैं. इटरेट ये लास्ट फेज है टेस्टिंग, बट बहुत इंपॉर्टेंट फेज है. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डिजाइन थिंकिंग इम्प्लीमेंटेशन इज द एप्पल. एप्पल को किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है. एवरी पर्सन नोज द एप्पल, बट दे आर स्ट्रांगली यूजिंग द डिजाइन थिंकिंग इन दैट डेवलपमेंट प्रोसेस. चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट हो या फिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो और एनीथिंग. उसके पास वाइड ऑफ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो लाइक मैकबुक, फोन, एयरबड एंड उसका सॉफ्टवेयर है iOS. सो स्टार्टिंग कहाँ से किया था एप्पल ने, गेम चेंजर इज फ्रॉम iOS सिस्टम. उसने पहले iOS बनाई थी, सो वहां से स्टार्ट किया. बट दे इट्स अ सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट, वो फिजिकल मार्केट में पहले नहीं आए थे. देन इट्स सॉफ्टवेयर, उसने iOS मैकिंटोश बिल्ड किया था. देन दे कीप इनोवेटिंग द प्रोडक्ट्स. उसके बाद एक के बाद एक नई प्रोडक्ट्स लाते रहे. सो नाउ दे हैव वेरी वैरायटी ऑफ रेंज उसके पास है. ऐसा नहीं एक में दिया तो दूसरे में वो सेम आएगा. यहाँ पे इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इटरेशन एंड इनोवेशन. उसने हर साल हर टाइम नया कुछ देने की ट्राई की है. सो उसकी बैकएंड टीम ऑलवेज इनोवेशन पर फोकस करती है, इटरेशन पर फोकस करती है. So what are the 3 takeaways to implement the design thinking or workflow? So first of all, focus on the customer problem first. So इस 5 phases में हर बार कस्टमर ही आता है. Whenever you work on anything, just आप यूजर्स के बारे में ही सोचो, कंपनी के बारे में मत सोचो. If you are thinking about the company, तो प्रोडक्ट वहां पे भी फेल हो गई, वो स्टार्टिंग फेज है कि प्रोडक्ट का फेल होने का. सो इन ईच एंड एवरी स्टेज जस्ट फोकस ऑन यूजर्स, नथिंग एल्स. उसका एक्सपीरियंस आप कैसे इंप्रूव करोगे. नाउ डेज आप देखो तो लास्ट 3 to 4 years सब इनोवेशन एंड ग्रेटर एक्सपीरियंस पे ही फोकस कर रही. कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि जो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देखा उसका ही चलेगा, बाकी निकल जाएगा.
फोकस ऑन द कस्टमर प्रॉब्लम फर्स्ट, उसका प्रॉब्लम क्या है वो समझो। अभी क्या हो रहा है कि मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाना है, भाई कंपनी स्टेबल है, अब नया क्या करे तो प्रोडक्ट स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ कस्टमर पर फोकस करना पड़ेगा। इटरेट क्विकली एंड इनोवेशन कॉन्स्टेंटली, आई टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट दिस। तो ये मेन सेकंड पॉइंट है इस सेशन का टेक अवे। एंड द थर्ड वन इज यूज फीडबैक टू फोकस एंड रिफाइंड आइडियाज। फीडबैक आपको लेना स्टार्ट करो। फीडबैक कहीं से भी मिलेगा। इट्स डोंट थिंक लाइक इसे मैं, ये तो नॉन आईटी है, इसको क्या पता चलेगा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, कहाँ से भी मिल जाता है। टेक अ फीडबैक। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन। फोकस ऑन कस्टमर प्रॉब्लम, इटरेट क्विकली, इनोवेट एंड यूज फीडबैक। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम दिखा और सॉल्यूशन आप फाइंड करोगे तो गो फॉर इट, प्रोडक्ट बना लो। देन ये कचरा सेट है हमारे यहाँ। मोस्टली सब लोग कचरा सेट बन गए कि डिजाइन को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे। मोस्टली जब प्रोडक्ट बन जाती है तो दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सेल्स एंड मार्केटिंग। भाई इसमें लगा देंगे, एड में लगा देंगे, मार्केट बूम होना चाहिए। जब डिजाइन की बजटिंग आती है 150 रुपया दूंगा, वी डोंट स्पेंड ऑन डिजाइन। सो डोंट बी अ कचरा सेट। अगर आप कचरा सेट बनेंगे तो प्रोडक्ट भी कचरा ही बनेगी। सो डिजाइन को इम्पोर्टेंस दो। डिजाइन पे ही तो एप्पल इतनी बड़ी हो गई, इट्स अ मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। उसने डिजाइन पर फोकस किया। ओके, सो जस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू डिजाइन। यूजर एक्सपीरियंस के बारे में सोचो। एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ब्यूटीफुल तो हम बना ही लेंगे। ओके, तो थिंक अबाउट द यूजर एक्सपीरियंस, उसको सेटिस्फेक्शन दो कि ये सेटिस्फाई है तो देन इट्स फाइन, हमारे प्रोडक्ट अपने आप ही हो जाएंगे। आपको मार्केटिंग में कम, एक्चुअली मार्केटिंग में आपको कम पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप डिजाइन में ज्यादा पैसा लगाओ तो मार्केटिंग का बजट उससे आई थिंक जितना स्पेंड करो उससे 50% कट हो जाएगा। अरे जरूरत भी नहीं पड़ेगी आई थिंक। एप्पल को क्या जरूरत है, लोग लाइन में खड़े रहते होते हैं जब नया फोन लॉन्च होता है तब। एप्पल ने क्या किया, एक्सपीरियंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा सेम ही दिया। अगर आप फोन फिजिकल यूज करो या फिर स्टोर में लेने जाओ तो उसने स्टोर भी ऐसा डिजाइन किया कि आपको स्टोर, उसका एप्पल स्टोर ही बढ़िया लगे। तो आप 2 घंटे तक वहां भी लाइन में खड़े हो तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप ये सोचोगे नहीं यहाँ पे तो चलो निकल जाएगा 2-3 घंटे और भी। सो प्रोवाइड एक्सपीरियंस, फोकस ऑन द एक्सपीरियंस फर्स्ट फॉर द यूजर्स। Yeah, so that's about the design thinking. Thank you for joining this evening. I'm available on the Dribble LinkedIn and regularly posting the design related things. So if you anyone want to connect, I will be here and happy to help whenever required. Okay? Yeah. Thank you. We are open for question. If you have any question, you can go ahead. I have my list of questions. I have lots of questions. So I will ask, give the opportunity first you guys. If you have any questions, just raise your hand. I will come there with mic. Yeah. Any other question? So મને એક ક્વેશ્ચન છે કે વચ્ચે તમે કીધેલું કે પ્રાયોરિટી ડિફાઇન કરવી જોઈએ, રાઈટ? સો પ્રાયોરિટી ડિફાઇન કરવા માટે કોઈ ફ્રેમવર્ક છે? કારણ કે મારી પાસે બહુ બધી વસ્તુ છે કે લિસ્ટમાં પડેલી છે, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ અ ફ્રેમવર્ક ફોર ડિફાઇનિંગ અ પ્રાયોરિટી? એટલે એના માટે પ્રાયોરિટી ડિફાઇન કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? अब प्रायोरिटी डिफाइन કરવા માટે સપોઝ કે ફ્રોમ સ્ક્રેચ પ્રોડક્ટ હશે તમારી તો એના માટે જસ્ટ ગેધર ધ ટીમ, उसमें भी आप डिसाइड करो कि टीम डिसाइड करेगी कि ये प्रोडक्ट हमें किस प्रायोरिटीज लिस्ट है तो उसमें फर्स्ट फीचर्स ऐसा होना चाहिए कि ये हम मस्ट देना चाहते हैं। आप यूबीएस आपका जो है तो आप क्या सोचते हैं कि कंपनी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एचआरएमएस ऐसा होना चाहिए कि आप कंपनी का हर एक एम्प्लॉय उसमें मैनेज हो। तो आप क्या करेंगे, तो एचआरएमएस को फर्स्ट लाएंगे। ओके, उसके बाद एचआर के रिलेटेड जो भी होगा फीचर्स लाइक अटेंडेंस वो भी हो तो जस्ट लिस्ट आउट दैट। उसके बाद आप जाओ दूसरी चीज़ों पे। सो गैदर द टीम एंड देन डिसाइड कि ये फीचर्स यूजर्स को चाहिए तो उसको पहले रखो। देन लिस्ट आउट द अदर थिंग।
ऐसा कोई टूल नहीं है कि भाई उसमें डालो तो आपको मिल जाएगा. फॉर इनिशियल प्रोडक्ट, इफ योर प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, तो उसके लिए है कि आप जो फीचर्स लॉन्च करते हो 2-3, उसको आप उसका डेटा देखो, उसका KPI देखो कि कौन सी फीचर्स लोग यूज कर रहे हैं. पहले आपने 3 फीचर्स एक साथ लॉन्च की तो यूजर्स ने उसको यूज किया तो आपको डेटा मिलेगा कि भाई कौन सी फीचर्स मोस्ट यूजेबल हो रही है. तो उसको आप लिस्ट में पहले जाओ एंड देन फोकस ऑन द रेस्ट. Thank you very much. થેન્ક યુ સર. જ્યારે ડિઝાઇનની વાત કરી તો ઓફકોર્સ એપલનું નામ આવે અને આઈ એમ વેરી હાર્ડકોર એપલ યુઝર મોર ફોર ઇટ્સ એક્સપિરિયન્સ. સો વુડ યુ જસ્ટ લેટ અસ નો કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ કોર આઈડિયોલોજી ઓર હાઉ દે ડિઝાઇન થિંગ ધીસ, બિકોઝ કે એનું પ્રોડક્ટ આવ્યા પહેલા યુ ફીલ લાઈક યુ ડોન્ટ નીડ ધીસ, બટ વન્સ ધ ફીચર કમ્સ ઇન યુ ફીલ લાઈક ધીસ ઇઝ વોઝ નીડેડ. અને આઈ એમ જસ્ટ ઇમેજિનિંગ કે એક વોચની અંદર ખાલી એક ડાયલ અને એક સ્વિચ મૂકીને આટલી બધી ફંક્શનાલિટીઝ જે લોકો લઈ આવ્યા, મતલબ આના પહેલા મને આ પ્રોડક્ટની તો શું જરૂર હતી એ થિંકિંગ થી કે ભાઈ આના વગર તો ચાલે નહીં એવું છે ને આ તો જોઈએ જ જોઈએ છે. એ કઈ રીતે એ લોકો કરી શકે છે, વેર તમારો જે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હતો કે ફર્સ્ટ એમ્પથાઇઝ, બટ ઇઝ ઇટ દે આર ગોઈંગ રિવર્સ ઓર જસ્ટ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ? या ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. एम्पथाइज में एक वो भी इंक्लूड होता है रिसर्च कि कई बार ऐसा होता है कि यूजर्स को भी नहीं पता भाई मुझे ये चाहिए. वो एप्पल की जो भी बड़ी कंपनी है उसका रिसर्च डिपार्टमेंट होता है. सो दे फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, कि अभी जो फीचर्स उसको आइडिया ही नहीं होता कि मैं एक फीचर लाऊंगा भी. सो ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन, कि जब रिसर्च करते हो तो आप ऑब्जर्व करो आप पूरी वर्ल्ड को, जो भी छोटी छोटी स्मॉल चीज हमारे यहाँ हो रही है, तो ये छोटी सी चीज उसने ऑब्जर्व करके ही लाया है. ओके, लाइक उसने एक एप्पल वॉच में वो फीचर्स लाया था कि एक्सीडेंट हो गया तो इमरजेंसी कॉल करेगा. वो मुझे भी नहीं पता, मुझे चाहिए कि यूजर्स को पता ही नहीं था, रिसर्च टीम को भी पता ही नहीं था. लेकिन व्हेन दे ऑब्जर्व, उसको पता चला कि ऐसा कुछ होगा तो क्या हम कर सकते हैं. ओके, सो ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वो कंबाइन करके वो अपनी फीचर्स को बढ़ाते हैं. सो एक मेरा भी है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, आई ऑब्जर्व. ओके, बस थोड़े टाइम पहले आई वॉज जस्ट गोइंग टू ईट डोसा, मैं डोसा खाने गया था. आई ऑब्जर्व कि उसने मेनू में एग्जैक्ट डोसा जो मेरे को ऑर्डर करना है उसका फोटो भी लगाया था. यहाँ पे हमारी सिस्टम है कि मेनू जस्ट लिख देते हैं. ओके, सो इन दैट रेस्टोरेंट उसने एग्जैक्ट फोटोज दिया कि व्हाट यू आर गोइंग टू ऑर्डर, जो एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है. सो सेम चीज जो रेस्टोरेंट ओनर था उसने कहीं पे ऑब्जर्व किया होगा कि लेकिन मुझे पता नहीं इसमें क्या मंगाना है, उंगली रख दो ये मंगा लूँ. एवरीथिंग, एवरी आइडिया, इनोवेटिव आइडियाज कम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. तो जस्ट ऑब्जर्व करो एंड देन उसको आप लिस्ट आउट करो, देन कुछ ना कुछ निकल जाएगा. Office Bay, can please take a seat, and also Zitin, please take a seat. I'm sure it's going to be long evening. Yeah. Jatin ji, this side. I've got a question. Although I'm not belonging to the age group which you all people are, but the thing is that your presentation was very nice. I was expecting little bit of technical also, but I missed it. Anyway, my question to you is that you mentioned about the customer requirement or focusing on the customer client, or you are saying user. Now, generally what I have observed is that you change the app, its construction, its whole thing, its color, its pattern, contact details. Generally we people go for the contact details or product details or something like that, but next time when we visit the app or website or something, it totally changes. Then it becomes a confusion. Instead of, you are saying that you are adding, you are changing the version 18 times, changing the color and pattern and all, but it becomes confusion sometimes. So how do you deal it? And second is that if you go to a corporate sector, say website of Reliance,
it's hardly changes. But if I go to IRCTC, it changes regularly. So I have to search where I have to post my password and ID. So why so much of changes? Is it really required, or is it just for fun you are doing? नो एक्चुअली वो फन के लिए नहीं करते. व्हाट हैपेंस, मोस्टली कंपनीज जब चेंज करते हैं वो ए बी टेस्टिंग कर रहे हैं, 50-50% ट्रैफिक डिवाइड करते हैं. सो जो चेंजेस ला रहे हैं उसका कुछ रीजन होगा. वो कंपनी जो डेटा ड्रिवन चलती है वो डेटा पे ही चलेगी. सो दे सॉ द डेटा कि सर्च नहीं हो रहा है तो व्हाई इज द सर्च इज नॉट हैपनिंग. तो वो हम जनरली हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द ट्रैफिक 50% द ओल्ड प्रोडक्ट एंड 50% द न्यू प्रोडक्ट जो चेंजेस किया है. सो अगर न्यू चेंजेस किया है वो एग्जिस्टिंग यूजर को क्लिक हो जाता है देन इट वर्क्स फाइन. अगर नहीं होता है देन वी नीड टू रीडिफाइन इट. चेंजेस कब होता है कि फीचर स्टेबल है, उसको यूज कर रहे हैं तो वो नहीं छेड़ते लोग. बट जो फीचर्स प्रॉब्लमेटिक है, डेटा दिखा रहा है कि ये कुछ इसमें कमी है, तो उसमें ही चेंज हो रहा है. कि पूरा चेंज करना इट्स आपने बोला है सेम प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है कि सर तो यहाँ था लेकिन कहाँ चला गया. लेकिन इतना बड़ा भी इटरेशन नहीं होता. इट्स लाइक अ स्मॉल चेंज कि जैसा मैंने बताया कि बुकमार्क को फेवरेट में चेंज कर दिया. सो चेंजेस में अब पूरा थिंग चेंज नहीं होता. समटाइम अगर जो कंपनी चेंज कर रही है तो उसको देखना पड़ेगा कि इसका चेंज करने में से एग्जिस्टिंग यूजर्स को ध्यान रखा है कि नहीं रखा. अगर एग्जिस्टिंग यूजर्स का ध्यान नहीं रखा तो प्रॉब्लमेटिक तो होगा ही. लेकिन हमने जो किया था इट्स लाइक मैंने जैसे बताया 50-50 ट्रैफिक डिवाइड कर दिया था. और उसके बाद जो रिजल्ट आया था देन वी डिपेंड ऑन दैट डेटा. सो कंपनी रनिंग ऑन द डेटा ड्रिवन कि जो यूजर्स हमें डेटा दे रहा है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए. देन उसके हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं मिला देन वी ट्राइड फॉर यूजर टेस्टिंग. हमने एक फोकस ग्रुप को इनवाइट किया. इट्स अ वर्चुअली. तो 4-5 लोगों को हमने इनवाइट किया. देन वी रियली टेस्ट इट. उसको बिठाकर ऐप फोन पे दिया. देन वी चेक अगर ये काम कर रहा है कि नहीं. अगर डेटा काम नहीं कर रहा तो आपको रियल ह्यूमन के पास जाना पड़ेगा. अगर आपने जो चेंजेस आपने बोला वो नहीं वर्क करा देन वी नीड टू बैक, जो ओल्ड था वही लाना ही पड़ेगा. सो इटरेशन हमें ट्राई करना पड़ेगा वर्क करा है कि नहीं. सो दैट्स द प्रोसेस वी फॉलो. So when you say the word design thing, so તમે જેમ કીધું કે ડિઝાઇન પર પ્રોબ્લી ફોકસ કરવું જોઈએ, પણ સર ડિલિવરી બી એક બહુ ક્રુશિયલ પાર્ટ છે. બીકોઝ કે પ્રોડક્ટ બહુ સારી બનાવવામાં આવે પણ જો એની ડિલિવરીને પ્રોપરલી વેમાં નહીં કરવામાં આવે તો એના એક જે ચાર્મ છે સો એના માટે. બીકોઝ અગેન ઇફ આઈ કમ ટુ એપલ, સોરી ફોર દેટ, કે જ્યારે સ્ટીવ જોબ્સે ફર્સ્ટ આઈફોન લોન્ચ કર્યો, હી લોન્ચ ઇન અ વે દેટ અ ફોન, an internet device and a calculator, and this is not 3 different devices, this is one device. And I just want to inform the audience here, જે Apple ની WWDC જે સર થાય છે એમાં they have fixed words for a specific thing. એટલે જ્યારે iPhone ની ઇમેજ એ લોકો બતાવે છે then they use the word beautiful, અને iPad ની વખતે they say it looks stunning. So they fix in such a way that where you have to use the words itself. So they are good at the delivery part as well. So would you just focus on, કારણ કે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન સારી બનાવવી ડેફિનેટલી છે, but delivery part has to be in such a way, you have to have people who can deliver in such a way also. उसके हिसाब से मार्केटिंग स्किल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. स्टीव जॉब्स वो समझो ना, वो एक पर्सन था कि डिलीवर बनाने का तो उसने बना लिया, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन जो स्किल्स था वो बढ़िया था. आज तक उसकी तरह से प्रेजेंटेशन स्किल नहीं मैंने देखा. वन एग्जांपल, अब एप्पल जब लॉन्च हो रहा है या फिर कोई भी एप्पल चीज़ होती है कि वायर फ्रेम या फिर प्रोडक्ट, उसमें 9.41 आई थिंक टाइम रहता है. सो किसी ने सोचा है कि वाई इट्स जस्ट 9:41. तो स्टीव जॉब्स में उसको डिटेल में देखा कि जब फर्स्ट इवेंट जब बनी थी तो
ये स्लाइड 9.41 AM ही आएगी. सो वो मॉकअप फोन का बनाया उसने, तो उसमें मोबाइल में भी वही टाइम रखना उसने. सो इट्स अ स्किल ऑफ प्रेजेंटेशन. आप डिजाइन बना रहे हो लेकिन मार्केटिंग स्किल आपको अंदर होनी ही चाहिए. सो मार्केटिंग ऐसा नहीं कराओ कि डिजाइन अच्छा होगा तो चल जाएगा. तो मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेलिंग. तो वो सेल्स टीम और मार्केटिंग हैंडल करेगी. उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने दो, उसको अपना हिसाब से प्लानिंग बनाने दो, देन दे आर गोइंग टू सेल. जतिन भाई, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन कि कोई भी ऐप बनती है, फिर वो बहुत यूजर फ्रेंडली हो जाती है और अचानक से वो बंद हो जाती है. कई बार ऐसा देखा गया है. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आईफोन में एक नोट मास्टर करके बहुत अच्छी ऐप थी. इट वाज वेरी वेरी बिजनेस यूजफुल ऐप, जहां पे आप आपके बिजनेस के सारे जो भी है वो डेटा आप सेव कर सकते हो, और इट वाज गूगल सिंक्रोनाइज. अब वो बंद हो गई. अब उसका क्या सॉल्यूशन? मतलब आप उससे एक बार उससे बहुत अच्छा मतलब एक रिलेशन बन जाता है डे टू डे बेसिस पे, और अचानक से वो कंपनी बंद कर देती है. तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि इतनी अच्छी ऐप है, वो चल रही है और अचानक से बंद हो जाती है. सो यहाँ पे पार्ट आएगा इनोवेशन, कि जो सक्सेसफुल जो ऐप है उसकी कॉपी बन जाती है और उसके आइडिया पे दूसरे लोग बनाना स्टार्ट कर देंगे. बराबर. तो वो लोग क्या सोचेंगे इसमें, तो ये कि मैं नया क्या लाऊं कि यहाँ से लोग ट्रैफिक यहाँ पे आ जाए. सो यहाँ पे पार्ट आता है इनोवेशन. जब भी आपकी प्रोडक्ट और ऐप सक्सेसफुल हो गई, उस एज इट इज रखी, उसमें कोई नया फीचर्स नहीं आया, तो पीपल आर गोट गेट बोरिंग. एग्जाम्पल ले लो फेसबुक का. अगर आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम जो कल तक था वो आज डिफरेंस है. वो स्टोरीज लाए, रील्स लाए. बराबर. तो कुछ ना कुछ इनोवेशन आपको लाना ही पड़ेगा. सो देन आप मार्केटिंग में दूसरे एप्स और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको कम्पीट कर सकोगे. द बेस्ट एग्जांपल मैंने फिग्मा का दिया था आज. दूसरे कहीं भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो डिजाइन बना रहे थे. ऑल्सो फिग्मा ने वही बनाया, लेकिन उसने कोलैबोरेटिव इतना अच्छा कर दिया है कि फास्ट लोडिंग वाला अगर ब्राउजर में भी चलता है, डेस्कटॉप में भी चलता है. यू कैन इजीली शेयर द प्रोजेक्ट विद द क्लाइंट. यू कैन आस्क द फीडबैक. जो ये इनोवेटिव फीचर्स है जो दूसरी प्रोडक्ट्स में नहीं थे. स्केच में क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा डिजाइन है वो क्लाउड में स्टोर करना पड़ेगा, देन यू शेयर द लिंक, सेम द एक्सपी. तो कुछ इनोवेशन लाया. सो इनोवेशन इज द की पार्ट ऑफ द एनी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलाने के लिए. अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, देन जस्ट गो फॉर स्मॉल ऐप, उसको बढ़िया बना दो, उसके बाद ऐसे ही रहने दो. देन यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द अगली ऐप, नेक्स्ट ऐप. तो अगर आपको सेम थिंग्स ऐप चलानी है और प्रोडक्ट, देन यू नीड टू ऐड द इनोवेशन जो मार्केट में कम्पीट कर सके. सो दैट्स माय पॉइंट. हेलो, माय क्वेश्चन इज दैट कि आपका जो फील्ड है, डिजाइनिंग जो फील्ड है, इसमें अपना फी स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन होता है? क्योंकि ये डिजाइन जो है वो पूरा सब्जेक्टिव मैटर है. सामने वाला कंज्यूमर, कुछ ऐसी डिजाइन होती है जो सेलेक्ट करते ही पसंद आ गया, और कुछ चीज ऐसी होती है कि जो आपके एफर्ट डालने के बाद भी अगर वो चीज समझ नहीं आती है, बट वी हैव टू डिलीवर द प्रोडक्ट. उसके अंदर हमारा R&D, हमारा टीम एफर्ट्स बहुत ज्यादा लग जाते हैं. तो उस टाइम पर आप अपना जो फी स्ट्रक्चर है कि क्या आपको उनको चार्ज करना चाहिए विच इज सफिशिएंट, जो हमारा कॉस्ट भी रिकवर करे और हमें प्रॉफिट भी बनाए. तो उस टाइम पे आप कैसे डिसीजन लेते हो? You are a freelancer or a company or the... અમારે એક એડિશન ક્વેશ્ચન્સ છે. તમે હમણાં કચરા શેડનું એક્ઝામ્પલ લીધેલું, રાઈટ? Yeah. કે બધા લોકોને કચરા શેડ નથી બનવાનું. તો એના રિલેટેડ છે કે જ્યારે આપણે પ્રોડક્ટ વિચારતા હોઈએ, રાઈટ, પ્રોડક્ટ બિલ્ડ કરતા હોઈએ, તો એનો જે UI UX કે જે ડિઝાઇનિંગ પાર્ટ છે એ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન છે કે એમાં બજેટ કેટલું હોવું જોઈએ. લેટ્સ સે મારી બજેટ 10,000 રૂપીસ છે પ્રોડક્ટ બનાવવાનું, તો એને મારે UI UX ડિઝાઇનિંગ ને બજેટ કેટલું આપવું જોઈએ? સો હાઉ યુ ડિસાઇડ કે એ બજેટને કેટલું એલોકેટ કરી છે? એ કી ડિસિઝન જે કંપનીના ઓનર્સ કે જે ડાયરેક્ટિવ હોય એને લેવું પડે. બટ
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એ લોકોને ઇમ્પોર્ટન્સ ખબર હોવી જોઈએ. દે નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ડિઝાઇન ઇમ્પોર્ટન્સ. અગર उसको डिज़ाइन इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. एक कंपनी के साथ मैंने काम किया था. सो वी स्पेंड 6 months इन द डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट. जब और ओनर्स और डायरेक्टर सब इंक्लूड ही थे प्रोसेस में. सो एट द एंड प्रोडक्ट वाज गोइंग टू लॉन्च इन द 15 days. सो लास्ट मीटिंग हमने की बिफोर द लॉन्च, बिफोर 15 days. डायरेक्टिव को लगा कि मुझे इसमें मज़ा नहीं आया. वी आज द क्वेश्चन बट आपको मज़ा नहीं आया, लेकिन ये यूजर्स को चाहिए, ये हम बना रहे हैं लास्ट 6 months से, एंड सडनली यू आर सेइंग आपको मज़ा नहीं आया. सो यहाँ पे डायरेक्टर लेवल के जो प्रो है उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ जस्ट 15 days में ऐसा क्या हुआ कि उसको पसंद नहीं आया. सो यहाँ पे हमारा एफर्ट गया. ओके. सो हमें उसको एक इम्पोर्टेंट समझाना चाहिए फर्स्ट कि आप सीईओ हो तो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि आपके नाम से प्रोडक्ट चल जाएगी. आपको यूजर के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए. लेकिन हमारा नहीं चला, डिसीजन उसका ही रहेगा. देन हम कुछ नहीं कर सकते. देन इट्स योर कंपनी, योर प्रोडक्ट, देन इट्स फाइन. सो सब कुछ पीछे छोड़ दिया. देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द न्यू थिंग. सो आर्ग्यूमेंट वहां पे नहीं कर सकते. हम समझा सकते थे, उतना तो समझा लिया, लेकिन देन समटाइम्स लेट इट गो, उसको जाने भी देना पड़ता है. जस्ट रिसेंटली कुछ साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट भी किया था. इट्स NFT रिलेटेड प्रोजेक्ट. आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो मैंने एक डॉक्यूमेंट मांगा कि क्या बनाना है, व्हाट इज द फीचर्स. सो देयर जैसे दिस अ वेबसाइट, यहाँ पे जाओ, इसको कॉपी कर लो, बस दैट्स इट. तो मैंने 2 दिन ही वहाँ पे काम किया. देन आई लेफ्ट द कंपनी. प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया. दे आर प्रोवाइडिंग मी लॉट्स ऑफ हाई फी, पर वो छोड़ दिया क्योंकि विजन ही क्लियर नहीं था. सो समटाइम्स हमें हमारा भी खुद का भी एज अ डिजाइनर डिसीजन लेना पड़ेगा कि वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट है कि नहीं. सो जस्ट डोंट वर्क फॉर मनी कि यहाँ पे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो चलो काम हो जाएगा, उसको जो करना है तो कर ले, कोई बात नहीं. आई लेफ्ट द कंपनी. अगर आपको रेपुटेशन चाहिए कि पैसा चाहिए, पैसा तो आप दूसरी जगह पे से भी बना लेगा. आप फ्रीलांसर से या फिर नहीं, मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. हाँ. तो ये चीज़ प्रोडक्ट जो चीज़ है, आई एम इनटू द स्टार्टअप. तो जो क्या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करता है, बट हाउ टू, मतलब कि सारा चीज़ कस्टमाइजेशन पर है. जैसे आपका भी जो डिजाइन एस्पेक्ट है वो भी कस्टमाइजेशन पर है, बट उस कस्टमाइजेशन के रिगार्डिंग आप हाउ टू चार्ज द मनी टू देम. एक्चुअली उसका मनी का कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि ये चार्ज करना, वो चार्ज करना. इट डिपेंड्स ऑन कितना एफर्ट उसमें लगाना पड़ेगा. इफ इट्स कंप्लीटली न्यू थिंग, उसमें रिसर्च करना पड़ेगा. रिसर्च पे आप टाइम फ्रेम नक्की करो कि कितना रिसर्च करना है, इधर 1 month और 2 month और 1 week. उसके बाद डिजाइन में लगाना पड़ेगा. जस्ट टाइम फ्रेम बनाओ कि किसमें कितना टाइम लगेगा. सो मनी इज द टाइम. कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से बजट देना पड़ेगा. व्हाट आई डू, तो मैं पहले तो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, उसमें कितना मेरा एफर्ट लगेगा, रिसर्च में लगेगा कि नहीं. ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक स्मॉल प्रोडक्ट हो तो उसमें रिसर्च करेंगे कि इतना एक्सपीरियंस में कभी बार हम डायरेक्टली UI भी बना देते हैं. इट्स अ फूड डिलीवरी ऐप, तो बहुत सारी फूड डिलीवरी मैंने बनाई है. सो इट्स डायरेक्टली जंप इनटू द UI. तो एफर्ट आपको कितना लगाना है, उसके बाद ही प्राइसिंग पता चलेगा. मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक $10 पर आवर. अभी मेरे पास 25, 35, 40 आवर्स पर $40 पर आवर्स मैं चार्ज कर सकता हूँ. बिकॉज मैंने अपनी एक पहचान बनाई है. आई हैव बिल्ड माई ओन करियर कि ये देखो मेरे हिस्ट्री है, ये मेरा प्रोजेक्ट है. देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई चार्जेस. आपको लेना है, इफ कन्वीनियंट देन वी कैन गो फॉर इट. अगर नहीं लेना है तो देन डोंट वरी, हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे. सो आपको अपनी फर्स्ट रेपुटेशन बनानी पड़ेगी कि आप जो रेट मांग रहे हो वो देना चाहते हैं. लोग देंगे, जितना आप मांगेंगे वो देंगे, लेकिन आपको उसके हिसाब से रिजल्ट देना पड़ेगा. यू नीड टू प्रोवाइड अ क्वालिटी. अगर आप जस्ट बोलने में ही एक्सपर्ट हो देन उसको 2 दिन में पता चलेगा ये तो बोलने में ही एक्सपर्ट है, देन दे स्टॉप द वर्किंग प्रोजेक्ट. बट उसको आप रिजल्ट दोगे देन दे नो नहीं ये जो बोल रहा है वो दे रहा है. देन इट्स बेस्ड ऑन क्वालिटी.
क्वालिटी देना स्टार्ट करो, अपने आप हिसाब से लोग पैसे देने स्टार्ट कर देंगे. हेलो जतिन, माय क्वेश्चन इज, अगर मैं आईटी फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ और मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, मुझे लगता है कि वो ब्रिलियंट है, देन हाउ कैन आई एग्जीक्यूट? इन शॉर्ट फॉर्म 2-3 पॉइंट में बताइए कि आप ऐसे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं. फिर आइडिया वो चाहे चले ना चले 2 नंबर की बात है, लेकिन अगर मेरे दिमाग में है और उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, आई एम नॉट इन आईटी फील्ड, मैं बैकग्राउंड से नहीं हूँ उससे, तो मैं कैसे कर पाऊँ? या ऐसा जरूर नहीं कि आईटी फील्ड से वो वही प्रोडक्ट बनाए और सक्सेस हो जाए. इफ यू हैव एनी आइडिया तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो, उसका जस्ट थॉट प्रोसेस लो. आपको ऐसा नहीं कि भाई इंटरनेट में जाके यूजर्स को ढूंढे और फीडबैक ले. यहाँ पे इतने सारे लोग, आप अपना आइडिया दो के लोगों के साथ शेयर करो, फीडबैक लो. आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, और आपका आइडिया जिस फील्ड में है तो वो सोचो कि भाई इस फील्ड रिलेटेड है तो उसमें कौन से मेरे कॉन्टेक्ट्स है, तो उसको पहले आप शेयर करो. उसमें से आपको फीडबैक मिल जाएगा कि उसमें कभी बार एक एक्सपर्ट से भी मिल लो कि ये जो मैं आइडिया डेवलप करना चाहता हूँ उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट कौन है, तो उसको आप रीच आउट करो, तो उसका एक्सपीरियंस पहले देख लो, वो सजेस्ट करेगा कि जाना है कि नहीं जाना है. सो आइडिया होगा तो आप शेयर करो, थॉट लो, फीडबैक लो. अगर वो सबके फीडबैक अच्छे हैं देन यू नीड टू डेवलप अ टीम. वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी, और अब वो ऑब्वियसली बजट रहेगा. देन यू नीड टू प्लान. अब मेरे पास आइडिया है, सॉल्यूशंस है, देन हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट आइडिया, तो आप टीम बिल्ड करो. सो देन उसके बाद आपको खुद ही रास्ता मिल जाएगा. स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आप फेल भी होगे, ये स्टेप फॉलो करो, देन यू आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट. जस्ट थिंग इज लास्ट में क्या है कि फीडबैक फर्स्ट कलेक्ट करो. उसमें आपको पता चलेगा भाई आप कि ये करना है कि नहीं. आपको पता समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके दिमाग में चला है तो बहुत बढ़िया है, दुनिया हिला दूंगा, लेकिन वो एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बना ही रहा है, वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जिसके साथ आपने शेयर किया वो बताएगा अरे ये तो बन गया है, ये रहने दे. सो वहां पे ही आपका पैसा बच जाएगा. सो शेयर इट एंड गेट द फीडबैक फर्स्ट. अगर हमारा कोई जेनेरिक प्रोडक्ट है जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स के यूजर को सर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा ही प्रोडक्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को हेल्प में आता है, पर जब हम फीडबैक लेने जाते हैं तब दोनों के मतलब फीडबैक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं कि लाइक ये वाला फीचर यहाँ होना चाहिए, ये नेविगेशन वहाँ होना चाहिए, कुछ भी है मतलब, पर उन दोनों का मतलब डिफरेंट फीडबैक आता है. तो ये वाली सिचुएशन में हमारे साथ कैसा होता है कि हम पहले कोई फीचर एक जगह पे डालते हैं, फिर फीडबैक आता है कि भाई वहाँ पे सही नहीं है तो हमें चेंज करना पड़ेगा. इस तरह से मतलब ये सिचुएशन में हम कैसे टैकल करेंगे? एक्चुअली जब हम फीडबैक लेने जाते हैं ना, तब कई बार हमें भी फेस किया है कि भाई ये क्या बोल रहा है, कुछ पता नहीं है लेकिन क्या बोल रहा है. सो फीडबैक ऐसी चीज़ है कि डोंट ओनली डिपेंड ऑन वन फीडबैक. डेटा पे आप डिपेंड करो कि जिस लोगों का आपने यूज़र के साथ फीडबैक लिया है वो डेटा के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. इफ़ यू आर देयर आर 2 टाइप ऑफ let's say getting the feedback, quantitative and qualitative. It's a type of research, लेकिन उसमें आप फीडबैक भी ले सकते हैं क्वांटिटी और क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में क्या होता है कि यूजर्स आपने जो फील्ड पे जो जिस लोगों को पूछा उसका फीडबैक का एक लिस्ट बनाओ, देन गो फॉर द डेटा. आपका डेटा भी देखो कि ये जो फीडबैक दिया है उसके हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं. जब आप दोनों देख के आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा. सो डोंट डिपेंड ओनली ऑन दैट फीडबैक कि ये यूजर ने फीडबैक दिया तो वो सही होगा. इट्स नॉट नेसेसरी. चेक द डेटा एज वेल. KPI देखो आप, देन यू कैन गेट समथिंग. Last two questions. Due to time constraint, we take a 2 question only. So Jatin bhai, thank you very much for giving lots of knowledge today. My question is that चलो डिज़ाइन तो हमने बना ली, फिर उसका नेक्स्ट फेज है उसका डेवलपमेंट करना है. सो वहाँ पे ना कोलैबोरेशन का प्रॉब्लम रहता है, फ्रंट एंड टीम और डिज़ाइनर.
समटाइम्स डिज़ाइन इतनी हार्ड बनती है तो एप्पल एप्लीकेशन में उसका इम्पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना, और वहाँ पे एको प्रॉब्लम भी कभी कभी देखने को मिलता है. सो मैंने एक सोल्यूशन निकाला था, लाइक डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं. प्रोबेबली क्या होता है कि कोई भी एक डिज़ाइन है उसको वेबसाइट, एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, पिच डेक, एवरीवेयर वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, लाइक एप्पल द लेटेस्ट एग्जाम्पल. सो ऐसा कोई सिस्टम बिठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? टीम कोलैबोरेशन को कैसे ट्रांसपेरेंट और 100% ऑनेस्ट रखना चाहिए? या ओके, सो इन दिस केस आप एक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि जब भी कुछ आप बना रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ डिज़ाइनर ही बनाएगा. सो डिज़ाइनर को एग्जैक्ट आइडिया होगा उसने क्या बनाया है. सो डिज़ाइनर को ऑनरशिप दो कि आपने जो बनाया है वो 100% इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं. अगर डेवलपर जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा उसके पीछे पड़ जाओ, तो वो रिस्पॉन्स और डिज़ाइनर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. सो मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ जब भी मैं मोबाइल ऐप बनाता हूँ, वेबसाइट बनाता हूँ, देन आई एम आस्किंग फॉर क्लाइंट कि मुझे बताओ क्या इम्प्लीमेंट हुआ. अगर वो परफेक्ट तरह से नहीं हुआ तो मैं बोलूँगा दिस इज द नॉट राइट वे, ये जो मैंने बनाया है और ये आपने बनाया वो तो टोटली डिफरेंट है. ओके, सो इन दिस केस मैंने कंपनी के साथ क्या वो प्रोसेस क्या फॉलो कर रही. जब भी मैंने एक्चुअली वो प्रोसेस मैं भी फॉलो कर रहा था कि whenever I design a module or something the new features going to implement in the product, तो वो उसके बाद मैं dev notes बनाता हूँ. Then मैं पर्सनली डेवलपर्स को एक्सप्लेन करूँगा ईच एंड एवरी पॉइंट. तो उसके लिए हमें हैंड ऑफ मीटिंग रखनी पड़ेगी, विच इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स. बट हैंड ऑफ मीटिंग के पहले जो मैंने डिजाइन बनाया था विथ टेक्स्ट रिटर्न, एवरीथिंग नीड्स टू बी इन रिटर्न फॉर्मेट, नॉट वर्बली. आपने जो डिजाइन बनाया देयर इज अ बटन, राइट डाउन दैट बटन हाउ इट शुड वर्क. इस पे क्लिक करने के बाद ये आएगा, वो आएगा, वॉट एवर थिंग, जस्ट मेक इट इन रिटर्न. अगर आप एक दिन नहीं हो, आप छुट्टी पर हो, देन डिजाइनर उस पर काम कर रहा है तो वो रिटर्न में देखेगा, पता चल जाएगा कि नहीं ये है. सो बिफोर दिस अ फ्लो कि हैंड ऑफ मीटिंग से पहले वो शेयर करो, एक दिन का टाइम डेवलपर को दो देखने के लिए. सो व्हाट द थिंग्स वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. देन इन हैंड ऑफ मीटिंग द क्यूए स्टार्ट होगा. डेवलपर को क्वेश्चन पूछने दो कि डिजाइन में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन क्वेश्चन है कि नहीं. दे नीड टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन, क्योंकि आखिर में उसको ही बनाना है. स्टैटिक डिजाइनर जो फ्रंट एंड बनाएगा वो डिजाइन स्टैटिक के रिलेटेड पूछेगा, जो बैक एंड में जो भी काम करेगा वो डेटा रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ से ये कैसे आएगा. सो डिजाइनर्स को वो सब कुछ क्लियरेंस देना पड़ेगा. So it's in hand off meeting you need to be clear both side, designer side and design developer side. Then उसके बाद implementation चालू होगा और QA खुद को डिजाइनर को ही बनना पड़ेगा. QA हर एक आफ्टर डिप्लॉयमेंट QA होता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा, उसको हर चीज का पता नहीं होगा. सो डिजाइनर को भी QA बनना पड़ेगा. तो इन दिस केस कोलैबोरेशन में आप एक हैंड ऑफ मीटिंग रखो कि डिजाइनर डेवलपर को पूरा ऐप और जो भी फीचर्स वो समझाए एंड क्लियरेंस हो जाए. उससे क्या होता है कि टाइम बर्बाद नहीं होगा. डेवलपर्स कभी कभार थिंग्स गलत समझते हैं. इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट मैच्योर, उसको पता ही होता है लेकिन क्लियरेंस नहीं होती. तो इन हैंड ऑफ मीटिंग एवरीथिंग नीड टू बी क्लियर. आप सब कुछ क्लियर कर लो, उसके बाद ही आगे बढ़ो. सो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ हैंड ऑफ मीटिंग रखे कोलैबोरेटर में, जो डिजाइनर सब कुछ है. उसके बाद डिजाइनर को ही क्यूए बना दो. आप पीछे पड़ जाओ भाई ये ठीक नहीं हुआ, ये इम्प्लीमेंट ऐसा ही होना चाहिए, देन आपकी प्रोडक्ट सेम टू सेम बनेगी. Is it the last question? If you don't have, I have one question. Yeah. You have a question, right? No? I don't have a question, but I have a suggestion if you just allow me so. So I see a lot of people are interested in design thing and all. So just like me and all of you, आपको एक suggestion है. There is a documentary series on Netflix called Abstract, The Art of Design. If some people are aware or not. So please go and watch because it is highly थोड़ा intellectual है. But people who are interested in design things, a very good thing because there are world-renowned designers
photographers, toy designers, the person who designed this Nike Air Jordan shoes, it's there. So वहाँ से जो सर का question था कि भाई सिर्फ एक idea है, so just go and watch, you can see that how these people think and implement things on it. Okay, it was a suggestion. Thank you. Right, so I have the last question. Before I ask that question, અમારી founders કેટલા છે? Founders का office owners કેટલા લોકો છે? Because મારો question તો tricky છે. Okay, આમાંથી designer કેટલા છે? Okay, great. બહુ બધા designers છે. Good. So question તમારા માટે છે કે તમે એક પોઈન્ટ કીધો વચ્ચે કે ડિઝાઇનર છે ને એના ફાઉન્ડર્સને કન્વિન્સ નથી કરી શકતા કે ભાઈ મારી ડિઝાઇન બરોબર છે, કે મેં જે બનાવ્યું છે ને એ આપણે યુઝ કરવું જોઈએ, રાઈટ? સો વોટ ઇઝ અ મેથડ કે વોટ ઇઝ અ આઈડિયા કે ભાઈ હાઉ વી કેન રિપ્રેઝેન્ટ અવર કેસ, કે ભાઈ જે ડિઝાઇનર્સ છે એનો કેસ કેવી રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે ફાઉન્ડરની સામે કે ભાઈ આજે મેં બનાવ્યું છે, ધીસ ઇઝ થોટ પ્રોસેસ, ને આના લીધે જ મે બી તમે જે કહો છો એ રોંગ છે ને હું જે કહું છું એ રાઈટ છે, એ કેસ રિપ્રેઝેન્ટ કરવો તો કઈ રીતે કરી શકે લોકો? યા સો એના માટે જસ્ટ આપણે ફાઇનલ રિઝલ્ટ નહીં બનાવો કે જોવામાં સારું લાગે છે ધીસ इज गुड प्रोडक्ट, आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है उसका रिसर्च डॉक्यूमेंट आपने बनाया ही होगा. सो प्रेजेंट एवरीथिंग, मार्केट में आपने रेफरेंस भी देखा होगा, कौन से कॉम्पिटिटर्स है वो भी देखा होगा. व्हेनेवर आई स्टार्ट एनीथिंग समथिंग न्यू तो मैं पूरा रिसर्च करता हूँ कॉम्पिटिटर्स कौन है, मार्केट में क्या चल रहा है. तो ईच एंड एवरीथिंग आई मेक अ डॉक्यूमेंटेशन वेदर इन फिग्मा और वर्ड डॉक. तो उसमें मैं मेंशन करता हूँ कि एक स्पेसिफिक चीज़ का रीज़न है तो वाई, सो वो मैं मेंशन कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट में. सो प्रेजेंट दैट डॉक्यूमेंटेशन एंड होल प्रोसेस टू दैट जो भी डिसीजन मेकर है, सो उसको आप बताओ कि फाइनल रिजल्ट तक पहुँचने के लिए हमने इतनी सारी लंबी मेहनत की है, वी फॉलो द प्रोसेस, तो उसको प्रोसेस दिखाओ. देन उसमें एग्जाम्पल भी ऐड किए होंगे कि ये प्रोडक्ट थी, इसने ये किया तो ये फेल हो गई, इसके लिए हमने वो स्टेप्स नहीं लिया, देन वी जस्ट क्रिएट अ न्यू आइडिया और इस पे गए. सो हियर द थिंग इज डॉक्यूमेंट ऑल्सो बनाते जाओ. फॉर माई एग्जाम्पल जब मैं किसी एक चीज़ बनाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल एक सास प्रोडक्ट मैंने बनाई तो आई गो इन टू द डीपर ऑफ दैट कॉम्पिटिटर्स, साइन अप से लेते ऑनबोर्डिंग तक और एट द एंड जो हमारा टास्क कंप्लीट करना है वो पूरी प्रोसेस में फॉलो किया और एक ईच एंड एवरी प्रोसेस का स्क्रीनशॉट लिया एंड देन आई पुट इनटू द फिग्मा. तो एक प्रोडक्ट का वो एक फिग्मा फाइल बन गया. देन आई गो टू जंप इनटू द सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, तो ईच एंड एवरी स्टेप का स्क्रीनशॉट लिया. देन आई उसके हिसाब से मैंने समझा कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स है. देन आई मेक अ वायर फ्रेम, उसके बाद वायर फ्रेम की, देन आवर प्रोसेस स्टार्ट, वायर फ्रेम यूआई जो भी हो. लेकिन फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए मेरा रिसर्च था, तो वो रिसर्च आपको दिखाना पड़ेगा कन्विंस करने के लिए. अगर कोई पूछे तो अगर डिजाइन टीम को भरोसा नहीं है तो देन वी नीड टू शो दैट वन. सो रिसर्च आपका दिखाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, जो नॉट जस्ट फॉर यू, फ्यूचर में भी काम आएगा. टेक ईच एंड एवरी स्क्रीनशॉट और एग्जाम्पल रियल लाइफ का, रियल प्रोडक्ट का लो जब भी आप बनाओ. लेट्स से डोंट जस्ट डिपेंड ऑन ड्रिबल behance और गूगल स्क्रीनशॉट. हम डिजाइनर्स क्या करते हैं, नोटिफिकेशन स्क्रीन बनाए तो नोटिफिकेशन डिजाइन सर्च की तो ड्रिबल में आ गई, behance में आ गई, देन वी जस्ट कॉपी एंड डिजाइन. या फिर कोई फूड डिलीवरी प्रोडक्ट है तो अब फ्री में मिल जाएगा सब कुछ, पूरी XD है, फिग्मा जो भी डिजाइन है पूरी फ्री में मिल जाएगी. तो लोग क्यों स्पेंड कर रहे हैं डिजाइन में? वाई आर देन स्पेंडिंग? जस्ट थीम परचेज करो, बना लो. ओके, सो एज अ डिजाइनर वी नीड टू ऑब्जर्व द रियल ऐप, रियल प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है. यू कैन गो ऑन ड्रिबल behance जस्ट गेटिंग द ब्यूटीफुल आइडियाज, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए ओरिजिनल ऐप डाउनलोड करो, उसको देखो फ्री टाइम में, जब भी टाइम मिले तब, एंड यू देन यू विल जनरेट द आइडिया. एंड या ऑलवेज बाय योर आंसर इज द प्रोसेस. मैं प्रोसेस दिखाता हूँ, मैंने भी दिखाई थी. I mean, sometime founder need to be also convinced કે હા આ યુઝ કરવાનું છે, રાઈટ? એને બી ડાઉટ હોય છે કે આ કરું એમ. સો યુ નીડ ટુ કન્વિન્સ ધેમ કે ભાઈ એક્ઝેક્ટલી ધીસ ઇઝ અ મેટર એઝ પર માય અંડરસ્ટેન્ડિંગ, પછી ડિસિઝન તો એનું જ છે, રાઈટ? કે શું કરવું છે. हाँ, मैं वहाँ पे बताता हूँ कि ये देखो, ये मैंने प्रोडक्ट देखी है, हमारा कंपेटिटर है, यहाँ पे ये इसने गलत किया है, सही किया है, दैट्स व्हाई वी टुक फ्रॉम डिसीजन हियर. तो आपका जो रिसर्च है, जो भी बनाया है वो उसके हिसाब से प्रेजेंट करो, दिखाओ, देन इट्स अ गुड.
Okay, thank you very much. So we're moving to end of our session. I would like Bashir Bhai to have a word of thanks for behalf of HGCCI, and then after we are open for networking here, maybe 15 minutes. Yeah. ફ્રેન્ડ્સ, કાર્યક્રમના ઉપસ્થિત સર્વ જ્ઞાનીઓને નમસ્કાર. આજના આટલા માહિતી કાર્યક્રમમાં આપ સમક્ષ લાવવા માટે ધન્યવાદ તો વ્યક્ત કરવા જ રહ્યા. મુખ્ય વક્તા શ્રી જતીનભાઈ લાઠિયા આપ સમક્ષ જે સોફ્ટવેર ને પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન સંદર્ભે જાણકારી આપી, આ અંગે ક્ષેત્રને અલગ અલગ જે પાસાઓ અને ઓળખ કરાવી તે બદલ આપને અંતરપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. આટલો સરસ કાર્યક્રમ ની રચના જે કરી એ બદલ અમારા પ્રમુખશ્રી અને સમગ્ર આઈટી ટીમને હું અભિનંદન આપું છું. આજના વિષયના અંતર્ગત વધુ માહિતી મેળવવા અર્થે વિવિધ મૂંઝવણોને સચોટ રીતે સમજાવવા બદલ શ્રી અલ્પેશભાઈ વઘાસિયાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અંતમાં અહીં ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને આભાર બક્ષનાર શ્રોતાઓને પણ આભાર માની અલ્પ વિરામ આપું છું. થેન્ક યુ. આભાર.